یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبرا گئی تھی۔ اس کے سر سے دوپٹہ اتار کر مہدس نے اس کی ٹھوڑی اونچی کی اور گردن دیکھنے لگا۔ حور کی جان ہتھیلی پر آ گئی، جبکہ مہدس اب یک ٹک اس کی شہرک سے نیچے اسے نشان کو دیکھ رہا تھا۔ کیا نہیں تھا اس پل اس کی آنکھوں میں؟ حیرت، بے یقینی، دیوانگی، وارفتگی اور تشکر، جیسے کوئی کھویا ہوا خزانہ تھا جو اسے مل چکا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس نشان کو چھوا۔ اس کی حالت سے انجان دم سادھے اس نشان کو دیکھ رہا تھا۔ حور کو وہ نشان عزیز تھا، بے حد عزیز۔ وہ نشان کہ جس کے زخم نے اسے موت کے قریب ترین پہنچا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے وہ نشان آج تک عزیز تھا، کیونکہ اس کے باعث اس کی عزت بچ گئی تھی۔ مہدس پلیز، اسے خود پر جھونکتے دیکھ کر وہ منمنائی۔ نو پلیز نو، کہتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ تم میری ہو، تم میرے لیے بنائی گئی ہو، صرف میرے لیے۔ اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتا وہ کھویا کھویا سا بول رہا تھا۔ حور کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ تم جانتی ہو تم کون ہو؟ اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے رخسار چھوتا بےتابی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے مضبوط ہاتھوں کا لمس حور کو اس کے استحقاق کا احساس دلا رہا تھا۔ اس نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ حور کے یوں انکار کرنے پر وہ دھیرے سے ہنسا۔ وہ اس پل ہارا ہوا جواری لگ رہا تھا۔ تم کیسی جان سکتی ہو؟ جب میں ہی نہیں جان سکا تو پھر تم کیسے؟ وہ اس پل جیسے خود پر اپنی بے خبری پر ہنس رہا تھا۔ حور کا دل اس کی حالت پر کٹنے لگا۔ آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے شاید؟ اپنے رخساروں پر سے اس کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے وہ ناسمجھی سے پوچھ رہی تھی۔ ارے خواب نہیں دیکھا میں نے، آج حقیقت دیکھی ہے۔ ایک بار پھر اس کی گردن پر موجود اس نشان کو دیکھتا وہ قدرے اونچی آواز میں بولا تھا۔ اس کی لہو رنگ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر رخساروں پر لڑھک آیا تھا۔ میری ہو تم، صرف میری، اور کچھ نہیں جانتا میں۔ سن رہی ہو نا؟ اسے بازوؤں سے تھامتا وہ درست لہجے میں بول رہا تھا۔ گرفت اس قدر شدید تھی کہ حور کو اپنے بازو ٹوٹتے محسوس ہو رہے تھے۔ سن تو رہی ہوں لیکن سمجھ نہیں پا رہی۔ اس کا بھیگا گال اپنے ہتھیلی سے صاف کرتے ہوئے وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھاؤں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھتا۔ اس پل کوئی پاگل دیوانہ لگ رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں کیا تھا؟ حور کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ مجھے نہیں سمجھنا، جلدی سے کہتی وہ اس سے دور ہوئی۔ جلدی سے اپنا دوپٹہ شانوں پر پھیلا لیا، اور مہدس جو اس کے نکوش کو شدت سے محسوس کرنے کی خواہش رکھتا تھا، اسے دور ہوتا دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ واہ افسوس کہ وہ اس کی جانب بڑھ نہیں سکتا تھا۔ حور یہاں آؤ، اس کی بھاری آواز میں تڑپ تھی۔ حور مزید پیچھے کھسکی، نفی میں گردن ہلائی۔ میں نہیں آؤں گی۔ اپنے گال پر پھسلتے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ قطعیت سے بولی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ دل ہنوز شدتوں سے دھڑک رہا تھا۔ مہدس کے دل کی طلب حد سے سوا ہونے لگی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھی اشیاء نیچے گراتا وہ چیخا تھا۔ بھورے بال بکھر کر آنکھوں پر آ رہے تھے۔ حور کو اس کی جنونی انداز سے خوف محسوس ہوا۔ حقیقتاً اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ میں نہیں آؤں گی، ہمت کر کے کہتی وہ کمرے کے بند دروازے کی طرف بھاگی تھی، اور مہدس کو لگا وہ اس سے دور جا رہی ہے۔ وہ اس پل کس قدر پاگل ہو رہا ہے یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ حور رک جاؤ، کیسی بے بسی تھی، کس قدر محتاجی تھی کہ وہ اسے روک بھی نہیں سکتا تھا۔ حور نے بنا پلٹے کمرے کا دروازہ کھول لیا، اور مہدس کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ سارے خواب اس کی دھندلی آنکھوں کے سامنے حقیقت بنے گھوم رہے تھے۔ وہ دور جا رہی تھی، ہر خواب کی طرح۔ مہدس کی آنکھوں کے سامنے دھند سی چھانے لگی۔ حور، اس کے سرخ ہونٹ پھڑ پھڑائے تھے، لیکن وہ رکی نہیں تھی۔ کمرے سے باہر قدم رکھتے ہوئے اس کی ٹانگیں لرزی تھیں۔ اس کے ہاتھ ایک پل کو ساکت ہوئے تھے۔ اس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، جس کی بند ہوتی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر کن پٹیوں میں جذب ہو گئے تھے۔ بعد مرنے کہ میری لحد پر لکھنا تم، شکر ست شکر، ہر غم سے نجات مبارک۔ اسے ہوش و حواس گنواتے دیکھ حور کے حلق سے دبی دبی سی چیخ نکلی تھی۔ آنا، آنکھیں کھولو میری جان، اس کے بال سہلاتے ہوئے وہ نرمی سے کہہ رہی تھی۔ ان کی دھیمی آواز پر آن نے چہرہ ان کی گود میں رکھ لیا۔ مما نیند آ رہی ہے۔ لو، تمہیں نیند آ رہی ہے یا میری آنکھوں سے نیند روٹ چکی ہے؟ اسے شرم دلانے کو انہوں نے کچھ خفگی سے کہا۔ فوراً سیدھی ہوئی، گلابی آنکھیں کھول کر ان کی جانب دیکھا۔ آپ ابھی تک اس لڑکی کو نہیں بھولیں؟ آن نے نرمی سے پوچھا۔ اس کے سوال پر انہوں نے کچھ شکوہ کنان نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ لڑکی رابیل ہی تھی آن، اور اب دوبارہ اس کے لیے یہ الفاظ وہ لڑکی استعمال مت کرنا۔ انہوں نے بڑی سنجیدگی سے اسے ٹوکا تھا۔ وہ لب بھینچتی واپس لیٹ گئی۔ اس بار اس نے اپنا سر ان کی گود کے بجائے تکیے پر رکھا تھا۔ بہت یاد کرتی ہیں نا آپ اس کو؟ چھت کو گھورتی وہ یاسیت زدہ سی پوچھ رہی تھی۔
माहिरा बेगम की आंखों की उदासी बढ़ गई। वो मुझे भूलती ही नहीं। उन्होंने थके हुए लहजे में कहा। आन का दिल भी उदास सा होने लगा। आप इसे मुझसे ज़्यादा चाहती हैं ना? तकिए पर कोहनी टिका कर अपना सर हाथ पर रखती संजीदगी से पूछने लगी। इसके सवाल पर हौले से मुस्कुराई। माँ की मोहब्बत का पैमाना नहीं होता आना। तुम सिर्फ इतना जान लो कि अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती तो आज मैं तुम्हारे बाप के साथ होती, राबेल के पास होती। आखिर में राबेल का जिक्र करते हुए उनकी आवाज़ भर्रा गई थी। आन ने बेकरार होकर उनकी गोद में सर रख दिया। आई एम सॉरी मम्मा। उनका हाथ चूमते हुए इसने मासूमियत से कहा। राबेल की याद में उनकी आंख के गोशे नम हो गए थे। वैसे क्या कहने वाली थी आप? उनकी जानिब देखते हुए आन ने उनका ध्यान बटाने के लिए पूछा। जो बात मैं तुमसे कह रही हूँ पहले तहम्मुल से इसे सुनना, फिर मुझे जवाब देना। आन ने मुस्कुराते गहरा सांस लिया। आ गया तहम्मुल, अब बोलिए। फरजाना अपा चाहती हैं कि मैसम की शादी हो जाए। इसी सिलसिले में उन्होंने मुझसे बात की थी। माहिरा बेगम नर्म लहजे में बोल रही थी। तो ये तो बहुत खुशी की बात है, फ़ौरन इस मुहिम पर लग जाएं। वो पुरजोश होती चहक कर बोली। पहले पूरी बात तो सुन लो ना। इसके सर पर चपत लगाते हुए उन्होंने कहा। अच्छा सुनाएं। फिर से फरमाबरदार हुई। फरजाना अपा मैसम के लिए तुम्हें चाहती हैं। बात करते हुए एक पल को रुकी थी, फिर मुकम्मल कर ही ली, जबकि उनकी बात सुनकर आन के लबों की मुस्कुराहट पल में गायब हुई थी। दिल बेसाख्तगी में डूबा था। लेकिन मम्मा, उसके लब फड़फड़ाए थे। माहिरा बेगम के लबों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट थी जिसे देखकर उसकी ज़ुबान तालों से जा चिपकी। ज़ुबान तो खामोश हो गई थी, आंखों में जमा होते पानी ने सब कह दिया। उनके लबों की मुस्कुराहट सिमट गई। क्या मैसम भाई भी ऐसा चाहते हैं? आन की आवाज़ सरसराती हुई थी। इसे लगा वो उनके मुंह से हाँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। नहीं, मैसम की तरफ से तो उन्होंने कोई इशारा नहीं दिया, लेकिन फरजाना आपा ने अपनी दिली ख्वाहिश का इजहार किया है। और अपनी बात मुकम्मल करते हुए वो एक पल को रुकी। आन का सांस हलक में ही अटक गया और इसने बेताबी से पूछा, और ये कि मैं उनकी ख्वाहिश का एहतराम करना चाहती हूँ। तुम्हारी शक्ल बता रही है तुम ऐसा नहीं चाहती आना। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मुँह से भाई कह देने से नामहरम आपका भाई हो ही नहीं जाता। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद को राज़ी करो। मुझे तुम्हारे लिए मैसम से बढ़कर और कोई अजीज़ भी नहीं हो सकता। आन की आंखों में वीरानी उतर आई। कोई भी नहीं? मतलब कोई भी नहीं? उसकी ठोड़ी छूकर इसकी स्याह आंखों में देखते हो उन्होंने इस बार काफ़ी सख्ती से कहा था। हाँ, कोई भी नहीं। जैसे वो इसके दिल का भेद पा गई थी, क्योंकि आन की आंखें बता रही थी बस रो देने को है। लेकिन मम्मा, वो घिघियाई। हादी सैयद का वजीह चेहरा बेख्तियार जहन के पर्दे पर लहराया था। लेकिन कुछ नहीं आना। तुम चाहो तो वक्त ले सकती हो। अपने दिल को समझाओ, जहन को तैयार करो। मुझे तुम्हारे मुंह से हाँ ही सुननी है। इसके पास से उठते हुए उन्होंने हतमी लहजे में कहा। और अगर मैं दिल को ना समझा पाई तो? आन ने निगाह झुकाते हुए धीमी आवाज़ में पूछा। इसके कमरे से जाती माहिरा बेगम उसकी जानिब पलटी थी। अच्छी लड़कियां दिल के सामने बेबस नहीं होती आना। वो माँ बाप की खुशी के लिए दिल को समझा लिया करती हैं। और मुझे पता है कि मेरी बेटी एक अच्छी लड़की है। उन्होंने इसे अपनी मान भरी धौंस में लपेट लिया था। आन को लगा कि उसकी अगली सांसें थम जाएंगी। रेडी होकर जल्दी बाहर आओ, मैसम तुम्हारा वेट कर रहा है। जाते जाते उन्होंने आहिस्तगी से कहा था। वो कहना चाहती थी कि इसे कहीं नहीं जाना। हाँ, वो अब यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहती थी। वो जाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो हादी सैयद का सामना नहीं करना चाहती थी। फिर दिल को मार कर आंसू साफ करती फ्रेश होने वॉशरूम में घुस गई थी। क्यों रो रही हो? बताओगी भी कुछ? इसके चेहरे से हाथ हटाने की कोशिश करती राबिया फिक्रमंदी से बोली। आन ने अपने लब भींचते हुए चेहरा ऊपर कर लिया। रोने के बाइस आंखें लाल हो रही थीं। आन, हुआ क्या है? प्लीज़ बता भी दो। फिर से हादी ने कुछ कहा है? कोई और झगड़ा? इसके बाजू झंझोड़ते हुए राबिया ने इस बार कदरे ऊंची आवाज़ में पूछा था। आन ने हौले से नफ़ी में गर्दन हिलाई। बस वैसे ही, दिल घबरा रहा है मेरा। अपनी सुर्ख पड़ती नाक को शहादत की उंगली से छूती भर्राई आवाज़ में बोली। झूठ क्यों बोल रही हो? बताती क्यों नहीं हो यार? देखो आन, अब मुझे बता दो कि मसला क्या है। अगर इस हादी के बच्चे ने फिर कुछ किया है तो मुझे बता दो। इस बार तो बख्शूंगी नहीं मैं इसको। इसके पास से उठकर इसके सामने खड़ी होती बड़ी संजीदगी से बोली थी। ओ हेलो, अभी मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आया, तुम क्यों इसके पीछे पड़ना चाहती हो? मान लिया कि मैं हैंडसम हूँ, ये भी मान लिया मेरा बच्चा भी हैंडसम ही होगा। इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं तुम इसके या मेरे पीछे ही पड़ जाओ। जाने कहाँ से उसकी बात सुनता वो वहाँ आन टपका था और अब बड़ी गैर संजीदगी से बोल रहा था। आन ने अपना झुका सर मज़ीद झुका लिया, लरसती उंगलियों से भीगी आंखों को साफ किया। हादी की नज़र इस पर पड़ चुकी थी।
इसकी शरारत से चमकती आंखों में फ़ौरन संजीदगी दर आई थी। क्या हुआ तुम्हें? वही तो मैं इससे पूछ रही हूँ, मुझे लगा शायद फिर से इसकी आपसे कोई झड़प हुई है। आना, तुमसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ है? राबिया को यकसर नज़रअंदाज करता पंजों के बल इसके सामने बैठते हुए बोला। इसे यूँ अपने सामने बैठता देख संगी बेंच पर बैठी आना ने अपनी गोद में रखे बैग पर गिरफ्त मजबूत कर ली। आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ, सो रिलैक्स रहें, सो सो करते हुए इसने कदरे खफगी से कहा। जिस वजह से भी हुआ है मुझे वजह बताओ। इसके जवाब को खातिर में न लाते हुए हादी संजीदगी से बोला था। आन को मज़ीद रोना आने लगा। बैग पकड़ती वहाँ से उठी। राबिया ने शदीद नाराज़गी इसकी चांद देखा। चलो राबिया। हादी को यकसर नज़रअंदाज करते आन ने राबिया को मुखातिब किया। इसकी बेनियाजी पर हादी की पेशानी की रगें उभर आईं। सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, बताओ क्या हुआ है? इसके सामने आता वो दृष्टि से बोला था। आन ने बड़े ज़ब्त से इसकी जानिब देखा। जब बकवास है तो सुनाई कैसे देगा? बकवास सुनने के लिए नहीं, नज़रअंदाज करने के लिए होती है। मैं भी वही कर रही हूँ। इसे जवाब देकर इसने राबिया की कलाई थाम ली। चलो राबी। इसे कहते ही हादी ने एक झटके से इसकी कलाई थाम कर इसे अपने सामने किया था। जहाँ वो इसकी हरकत पर शशदर रह गई, वहीं राबिया के लबों से दबी दबी से हंसी निकली थी। जहाँ कहाँ रही हो? यूने का टाइम ऑफ हो चुका है, अब तुम्हें घर जाना है और आज तुम्हें घर मैं ड्रॉप करूँगा। क्या बदतमीज़ी है ये, मेरा हाथ छोड़ें। वो इस पर दबा दबा सा चीखी थी। हादी मुस्कुराया, फिर हैरान खड़ी राबिया की तरफ पलटा। सॉरी राबिया। इसने जैसे इन दोनों दोस्तों की गुफ्तगू को ख़राब करने के लिए माफ़ी मांगी थी। हाँ तो क्या कह रही थी तुम? बदतमीज़ी। मैडम यहाँ सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, कुछ तो कमर भी पकड़ लेते हैं। मैं ज़रा तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ। इसकी तरफ देखकर गैर संजीदगी से बोलता आखिर में अपनी बाईं आंख दबा गया। आन के दिल ने भरपूर शोर मचाया था। इसने गुस्से से इसकी जानिब देखा, मगर इसके लबों के कोनों पर रेंगती मुस्कुराहट इसे ठिठका गई थी। ना चाहते हुए भी बेबस हुई थी। दिल की बेईमानी ने इसके सारे दावे, सारे अज़्म खाक कर दिए थे। वो शर्मिंदा थी खुद से, अपने ज़मीर से, अपने नाम से, अपनी आन से। आंसू फिर से आंखों से बहने लगे थे। वो इसे लिए अपनी गाड़ी तक आया था। इसके लिए फ्रंट डोर खोला। आन ने नज़र उठाकर शिकवा करना निगाहों से इसकी जानिब देखा। बैठो प्लीज़, हादी ने नरमी से कहा। वो आंखों के कोने साफ करती गाड़ी में बैठ गई। हादी घूमकर दूसरी तरफ आया था और ड्राइविंग सीट संभाल ली। वो गाड़ी यूनिवर्सिटी से बाहर रोड पर निकाल लाया तो आन ने इसकी जानिब रुख किया। क्या मसला है आपके साथ? क्यों लाए हैं मुझे अपने साथ? अपनी आवाज़ की भर्राहट पर काबू पाने की नाकाम कोशिश करती संजीदगी से बोली। तुमसे पूछने के लिए, एक तुम्हारे साथ क्या मसला है? रो क्यों रही हो? आन को गुस्सा आने लगा। मेरे रोने से आपको क्या मसला है? मुझे मसला है तभी तो पूछ रहा हूँ। तो फिर वो आपका मसला है ना, मेरा तो नहीं। बाजू लपेटते हुए आन ने बेहिसी से कहा। वो चेहरे का रुख फेर गई थी। मुझे मत उलझाओ आना, जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। इसका हाथ थामते हुए हादी ने कुछ दरश्तगी से पूछा। अपने कलाई पर इसके हाथ का लम्स महसूस करती आन का वजूद जलने लगा। वो शख्स और इसकी मोहब्बत इसे गुनाहगार करने पर तुले थे। वजह जानकर आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते आप सिवाय बातों के, इसलिए जो करते फिर रहे हैं वही करें। मेरे मसाइल मुझे ही हल करने दें प्लीज़। अपना हाथ इसकी गिरफ्त से निकालने की भरपूर कोशिश करती रोते हुए बोली। आना प्लीज़, जस्ट स्टॉप। वो इसका हाथ मज़ीद सख्ती से पकड़ता बोल रहा था। इसकी नज़र फ्रंट मिरर से पीछे आती गाड़ी पर पड़ी। अपने पीछे आते गार्ड्स को देखकर इसके लब सख्ती से भींच गए। इसे इन पर शदीद गुस्सा आया था जो किसी वक्त इसकी जान नहीं छोड़ते थे। इसने एक झटके से गाड़ी रोकी थी। दरवाज़ा खोलकर जल्दी से बाहर निकला। वो इस गाड़ी की तरफ बढ़ा जो इसकी गाड़ी रुकते देखकर खुद भी रुक चुकी थी। आन ने पलटकर गाड़ी में से ही इसकी जानिब देखा। सर। इन 4 गार्ड्स में से एक ने बाहर निकलकर कुछ बोलना चाहा था। हादी ने इसकी पुश्त से रिवाल्वर निकालकर नाल का रुख इसकी जानिब कर लिया। गाड़ी में बैठे बाकी के 3 गार्ड्स उसकी हरकत पर हक दक रह गए। अगर अब तुम लोग मेरे पीछे आए तो एक एक को यहीं शूट कर दूंगा, यहाँ। इस गार्ड की पेशानी को रिवाल्वर से नॉक करता वो सुलगते हुए लहजे में बोल रहा था। इर्द गिर्द कुछ चलती कुछ रुकती गाड़ियों में से लोगों ने हैरत से इस मंजर को देखा था। सर, लेकिन आपके बाबा साहब। उस गार्ड ने हिम्मत करके कहा। आई सेड गो, जस्ट गो। गाड़ी की छत पर रिवाल्वर पटकता वो चीखा था। गार्ड्स को मानते ही बनी थी। उनके गाड़ी मोड़ लेने पर वो लोगों की नज़रों की परवाह किए बिना वापस अपनी गाड़ी की तरफ आया था, जहाँ वो सारा मंजर देख लेने के बाद परेशान सी बैठी हुई थी। इसने गाड़ी स्टार्ट की तो आन ने डरते डरते इसकी जानिब देखा। इतना गुस्सा किस बात पर है?
तुम पर, बड़े ज़ब्त से बोला था। मैंने क्या किया है? आन ने फ़ौरन पूछा। हादी ने इसे घूरा। मुझे तकलीफ़ दी है, मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती तुम। अगर करती तो मुझसे आज अपनी इन आंसुओं की वजह न छुपाती। सामने सड़क पर नज़र जमाते हुए वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला था। आन का दिल फिर से धड़का था। इसे लगा आज दिल को कुछ हो ही जाएगा। इसका गुस्सा, इसकी फ़िक्र, इसका मान जिताना, सब कुछ तो जानलेवा था। तो आप चाहते हैं कि मैं आप पर ट्रस्ट करूं? अपने हाथों की उंगलियां आपस में फंसाते हुए इसने कदरे संजीदगी से पूछा। मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर अपना आप वाजे कर दो, मुझ पर ट्रस्ट कर लो। इस बार नर्म मगर संजीदा लहजे में बोला था। एतबार हासिल करने के लिए पहले ख़ुद को काबिल एतबार तो बनाए। ना चाहते हुए भी आन ने इसके बदलते मोड का शिकवा किया था। हादी ने आहिस्तगी से गाड़ी इसके घर के गेट पर रोक दी। टायर चरचराने पर आन को लगा जैसे टायरों तले कुछ आया है। आन ने अपना बैग संभाला। वह हनूज लब भींचे हुए था। आन ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो संजीदगी से बोल पड़ा। मेरा ख्याल है एतबार करने के लिए मोहब्बत एक सॉलिड रीज़न है। सो अब ये तुम पे मुनहसर है कि तुम एतबार करती हो या नहीं। आन को पलट कर इसकी जानिब देखना पड़ा था। वह हैरान रह गई। अपने धक धक करते दिल को संभालती जल्दी से नीचे उतरी तो इसकी भीगी नज़र ज़ख्मी हो चुकी बिल्ली पर पड़ी। वो यकीनन गाड़ी के टायर तले आ गई थी। आन के मुंह से दबी दबी सी चीख निकली। वो जो इसके अंदर जाने के बाद गाड़ी आगे बढ़ाना ही चाहता था, इसके चिल्लाने पर जल्दी से बाहर निकला। वो मुंह पर हाथ रखे रो रही थी, मुंह में मुर्दा चूज़ा दबाए। वो बिल्ली शायद अपनी आखिरी सांस ले रही थी। यह आपने क्या किया? रोते हुए इस पर चीखी। इसकी नज़रों के ताक़ुब में वो भी इस नीम मुर्दा बिल्ली को देख चुका था। गलती से हुआ है शायद, जानबूझकर नहीं किया मैंने। जस्ट रिलैक्स, कोई इंसान नहीं है, एक बिल्ली ही तो है। हादी ने लापरवाही से कान ने भीगी नज़रों से इसको घूरा। आपके लिए तो इंसानों की जान भी मैटर नहीं करती। अभी कुछ देर पहले आप शायद एक जीते जागते इंसान पर गन ताने हुए थे। सुलगती नज़रों से इसकी जानिब देखती, मुंह बसोरती सो सो करते हुए बोली थी। अंदाज इस कदर प्यारा था कि वो बेख्तियार हंसा। अब हंस लें आप, लेकिन इस बेचारी के बच्चे तो भूखे मर जाएंगे ना। इस बिल्ली को तकलीफ़ में देखती वो फिर से रो दी, जबकि इसके अंदाज इसकी बात पर बेसाख्ता खिलखिलाकर हंसा था। आन जो रो रही थी, इसके हंसने पर एकदम रुकी। भीगी पलकों को झपकाते हुए इसने ज़रा सी गर्दन तिरछी करके इसका हंसना देखा था। अंदाज में मासूमियत थी। इसका हंसना इस कदर दिल फरेब था कि आन को सब कुछ रुकता महसूस हुआ, शायद अपना दिल भी। जबकि वो अब अपनी धुन में कह रहा था। ये इस बिल्ली के बच्चे फिर से हंसा। ओ यार, ये देखो, ये तो ख़ुद किसी मुर्गे के बच्चे की कातिल है। मुर्दा चूज़े की तरफ इशारा करके बोलता हंस रहा था। आन ने चौंक कर नज़रें झुकाईं। एक तरह हम भरी निगाह इस बिल्ली पर डाली जो शायद मर चुकी थी। बहुत ही बेहिस हैं आप, लरसती आवाज़ में कहती हाथ खुले गेट से अंदर को भागी। अंदर नहीं बुलाओगी? बिल्कुल नहीं, पलट कर कहती से ज़ुबान दिखाकर अंदर भाग गई। वो हंसता अपने बालों में हाथ चलाता इसे नज़रों से ओझल होता देखता रहा। दो नम आँखों ने अजियत से इन दोनों का हंसना देख लिया था। फिर खिड़की का पर्दा ठीक करते वह आंखें बंद हो गई। तुमने बहुत गलत किया है आना, माहिरा बेगम बुड़बुड़ाई थी। रात की सियाही में मलिकगाह की छत पर इस वक्त रोशनियां उतरी हुई थी। बरकी कुमकुमों से सजी इमारत इस वक्त दुल्हन का सा रूप लिए हुए थी। पूरी छत के इतराफ में खूबसूरत भारी पर्दे और लाइटों से सजावट की गई थी। तरतीब से सजाई गई कुर्सियों पर विराजमान मेहमान आपस में महवे गुफ्तगू थे। कुछ की निगाहें स्टेज पर बैठी किरण के चमकते रूप पर थीं। वो मेहंदी का लिबास पहने बेहद हसीन लग रही थी। एक गहमा गहमी का समा था जो देखने वाली नज़र को मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा था। इसके पहलू में बैठा खिज़र अपनी खूबसूरत आंखों में गुरूर सजाए, लबों पर मुस्कुराहट लिए बार बार किरण के कान में झुकता सरगोशियाँ कर रहा था। एक कोने में खड़े अपने मोबाइल में मसरूफ़ असीद ने दहकती हुई नज़रों से इन दोनों का हंसना मुस्कुराना देखा था। इसे शायद रकाबत का एहसास हुआ था। वजूद में अजीब सी टीसे सी उठी थी। वह लब भींचता वहाँ से जाने को पलटा। तभी इसकी नज़र सीढ़ियों से ऊपर आती राबी पर पड़ी। पिंक शर्ट, कुर्ती तले पिंक और लेमन इम्तजाज का लहंगा पहने, वो बाजुओं में लेमन कलर का दुपट्टा लपेटे ऊपर की जानिब ही आ रही थी। इसके सीने पर आते सुनहरी लंबे बाल इसके हुस्न को निखार रहे थे। वो चंद पलों के लिए अपनी जगह मबहूत सा खड़ा रह गया। ये शायद ज़िंदगी में पहली बार था कि वो इसके खूबसूरत बालों को यूँ खुला पुश्त पर बिखरा देख रहा था। वो इसके पास से गुजरी तो असीद का सख्ता टूटा था। इसने बेख्तियार अपनी शिद्दत से धड़कते दिल पे हाथ रखा। वो धीमी चाल चलती सीधी स्टेज तक गई थी।
किरण के सामने रखे टेबल पर इसने अपने हाथ में पकड़ी मिठाई की प्लेट रखी थी। मुस्कुराते हुए इसने इन दोनों को कुछ कहा था, जिस पर खिज़र ने खुश दिली से मुस्कुराते हुए इसे जवाब दिया, जबकि किरण की सुलगती मुस्कुराहट दूर से ही असीद को नज़र आ गई थी। वो कुछ सोचकर मुस्कुराया। राबी पलटी थी। इसका चांद चेहरा अब हर निगाह के सामने था। इसकी जानिब नर्म निगाहों से देखते असीद को अपना दिल हाथों से निकलता महसूस हुआ। इसके चेहरे की फितरी मासूमियत इसके लबों से निकलने वाले बड़े बड़े लफ्ज़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इसके शफाफ लबों पर अपने करीब आती राबी को देखकर मुस्कुराहट गहरी होने लगी। राबी भी इसे देख चुकी थी। इसके पिंक लिपस्टिक से सजे कटावदार लब हौले से मुस्कुराए थे। वो इसके सामने आकर रुकी। घूर क्यों रहे हैं? अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए इसने भरपूर संजीदगी से पूछा। घूर नहीं रहा, दीदार कर रहा हूँ, गैर संजीदगी से कहता वो धीरे से हंसा था। इसके जवाब पर राबी ने इसे आंखें दिखाईं। किस हक से? वो तड़क कर बोली, तुमसे मोहब्बत हो गई है, इस हक से। इसकी काजल से लबरेज बादामी आंखों में झांकते हुए बलजस्तगी से बोला। जितनी फुर्ती से इसने राबी को जवाब दिया था, इतनी शिद्दत से राबी के दिल ने बेटमिस की थी। इसके गुलाबी गाल पल में अनारी हो गए। फ़ौरन नज़र झुका गई। स्टेज पर बैठी किरण के साथ साथ फ़ाखरा बेगम ने चुपती नज़रों से इन दोनों का एक दूसरे को मुखातिब करना देखा तो वो दोनों उनकी बातें सुनने से कासिर थीं। लेकिन असीद का चमकता चेहरा सारे राज अफशा कर रहा था। किरण, जो इसे अपनी शादी पर जलता, कोटता, रोता और तड़पता हुआ देखना चाहती थी, इसे यूँ मुस्कुराता देखकर खुद ही कुड़ने लगी। जबकि इसकी हालत से बेनियाज वह अब राबी से कह रहा था, क्या अब तुम मुझे एक मौका दोगी? वो बहुत धीमी आवाज़ में पूछ रहा था। राबी ने अपने लबों पर ज़ुबान फेरते हुए नज़र उठाई। असीद के दिल का आँखों में खुशियों का एक जहान आबाद था। इसका रोशन चेहरा इसकी अंदरूनी खुशी का पता दे रहा था। इस चेहरे पर किरण को लेकर कोई उदासी नहीं थी। वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। नर्म निगाहों से असीद की जानिब देखा, फिर हौले से इस बात में सर हिलाकर खिलखिलाई। लबों पर हाथ रखकर मोतियों की तरह चमकते दांतों को छुपाने की कोशिश की थी। असीद का दिल झूम ही उठा। राबी के हंसने पर किसी मेहमान खातून से बातें करती नुसरत बेगम यानी कि असीद की अम्मी की निगाह इस पर पड़ी थी। असीद को राबी के साथ खड़े देखकर उनके चेहरे पर सख्ती छा गई। असीद, असीद, उन्होंने वहीं से उसे पुकारा। वो चौंक कर उनकी तरफ पलटा था। राबी के हंसते लब धीरे से सिमट गए। जी अम्मी, वो उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। यहाँ आओ। राबी को नफ़रत भरी निगाहों से घूरते हुए उन्होंने असीद को मुखातिब किया। राबी का चेहरा उनकी निगाहों की तीरों से बुझ सा गया। नज़र उतार लेना, बहुत प्यारी लग रही हो। जाते जाते वो कह कर गया तो राबी अपने लब भींच गई। वो सर झुकाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई, जबकि उसके पुश्त को घूरती नुसरत बेगम अब असीद का तारुफ इन मेहमान ख़वातीन से करवा रही थी। उनका मूड असीद की हरकत पर ख़राब हो चुका था। क्या कर रहे थे उसके साथ? इसे एक जानिब लाकर वो इस पर दबा दबा सा चीखें। उनके सख्त लहजे पर वो अंदर ही अंदर किलस कर रह गया। तुमसे पूछ रही हूँ, फोड़ते नहीं हो कुछ? क्या कर रहे थे? फिर से बोलनी थी। क्या कर रहा था? क्या कर सकता था मैं यहाँ सबके सामने? सिर्फ बात कर रहा था अम्मी। इसने चिढ़ कर इन्हें जवाब दिया था। नुसरत जहाँ ने शोले बरसाती निगाहों से इसे घूरा। अब ऐसे तो मत देखें अम्मी। इसकी झुंझलाई हुई आवाज़ करीब ही चेयर पर बैठी इशरत जहाँ ने बखूबी सुनी थी, जिनकी पोश्त इस जानिब होने की वजह से वो दोनों माँ बेटा इन्हें नहीं देख पाए थे। मेरी बात कान खोल कर सुन लो असीद, राबी मेरे घर की बहू कभी नहीं बनेगी। मेरे जीते जी तो बिल्कुल नहीं, इसलिए बेहतर यही है तुम इससे दूर रहो। वो एक एक लफ्ज़ चबा कर बोल रही थी। वो इसकी माँ थी। इसकी आंखों के बदलते रंगों का भेद पा गई थी। ओह अम्मी, एक तो आपकी सोच भी ना, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। मैं सिर्फ इससे अम्मा के बारे में पूछ रहा था, जब से नज़र ही नहीं आई वो। उनका गुस्सा कम करने को दबी दबी सी आवाज़ में बोला था। इन दोनों की गुफ्तगू सुनती इशरत जहाँ अपने लब भींच गई, फिर अपनी चादर दुरुस्त करती खड़ी हुई और उनकी जानिब पलटी। असीद की नज़र उन पर पड़ी तो उसका रंग एक पल को मुतगय्यर हुआ। नसरीत बेगम भी बौखला गई थी। मैं यहाँ हूँ पुत्र, बोलते हुए वो हौले से मुस्कुराई। वही शफीक नर्म मुस्कुराहट। बदले में बामुश्किल मुस्कुराया। और नसरीन धी, तो मेरी धी की तरफ से फ़िक्र न कर। मेरी शहज़ादी के लिए रब सोना किसी शहज़ादे को ही भेजेगा। तो अपना पुत्र सांप के रख, वरना ये ना हो कि तुझे से बहू बनाने पर मजबूर होना पड़े। राबी की अहमियत उन पर वाज़े करती वो ये भी जिता गई थी कि असीद के जज्बात नसरीन को मजबूर कर देंगे। मेरा राजा बेटा अपनी माँ को कभी मजबूर नहीं करेगा अम्मा। जो मैं चाहूँगी इसे वही करना पड़ेगा। नसरीन बेगम ने बिना लगी लिपटी रखे माँ को जवाब पकड़ाया था। असीद इस सूरत पर बौखलाया हुआ लग रहा था।
इशरत जहाँ ने नाम आँखों से असीद की उड़ी रंगत देखी, फिर मुस्कुराते हुए तासुफ से सर हिलाया। नुसरत बेगम तनफ्फुर से सर झटकती पलट गई। असीद ने धीरे से इशरत जहाँ का हाथ थाम लिया। अम्मा, मैं राबी से शादी करना चाहता हूँ, आप मेरी मदद करें प्लीज़। वह बेबस सा बोला था। ये बात तुझे अपनी माँ के सामने बोलनी चाहिए थी पुत्र, पर तूने इससे झूठ बोल दिया। मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। इसका कंधा थपकते हुए इशरत जहाँ ने नरमी से कहा, असीद। नुसरत जहाँ ने एक बार फिर इसे पुकारा था। वो इशरत जहाँ का हाथ छोड़ता अपनी माँ की तरफ बढ़ा। तेरा राजा पुत्र तेरा ग़ुलाम है नसरीन थी, और ग़ुलामों को कभी रानी नहीं मिला करती। असीद की जानिब देखती वो धीरे से बुड़बुड़ाई थी। असीद अपनी माँ के साथ खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। वो हड़बड़ा कर उठा था। खाली वहशत ज़दा निगाहों से कमरे में निगाह दौड़ाई थी। वो वहाँ कहीं भी नहीं थी। महदस का दिल डूबा। इसका दुखता सर भारी हो रहा था। जहन पर बहुत ज़्यादा जोर देने पर भी इसे याद नहीं आ रहा था कि वो कितने घंटों बाद होश में आया है। जो आखिरी सोच इसके जहन में थी वो इतनी ही थी कि वो इसे छोड़कर जा चुकी है। महदस ने अपनी सूजी हुई दुखन ज़दा आँखों को मसला। हुर, इसके लब हौले से हिले। इसने बेड से नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन मफलूज टांगें बर्फ़ की सिल हो रही थी। वो अपनी जगह से हिलने से भी कासिर था। इसे खुद पर, अपनी मोहताजी पर शदीद गुस्सा आया। हुर, इस बार महदस ने इसे पुकारा था, लेकिन इसकी पुकार का इस खाली कमरे में कोई असर नहीं हुआ था। हुर, कहाँ हो तुम? वापस आओ। इस बार इसकी आवाज़ बुलंद तरीन हो गई थी। हुर, वो चीखा था। बेड पर पास ही पड़े कुशन्स और तकिए सामने दरवाजे की तरफ उछाले थे, लेकिन दरवाज़ा काफ़ी दूर था। हुर, वापस आओ, वापस आओ हुर। वो बुरी तरह चीखने लगा। पागलपन का एक दौरा था जो इसे पड़ रहा था। इससे पहले कि वो अपने आपे से बाहर होता, कमरे का दरवाज़ा खुला था। महदस ने चौपट खुली आंखों से सामने देखा। तुम जानती हो कि तुमने क्या किया है? वो एक एक लफ्ज़ बोलते इस पल शदीद बरहम लग रहे थे। वो सर झुकाए अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ रही थी। आज पूरे 3 साल बाद डिप्रेशन का शिकार हुआ है, और वजह तुम हो हुर। मैंने अपने बेटे को बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर किया था, और तुम्हें इसकी ज़िंदगी में इसलिए शामिल किया था ताकि वो ज़िंदगी गुजारने के बजाय जीने की कोशिश करे। लेकिन तुम, बड़े ज़ब्त से बोलते वो शायद ख़ुद को कुछ सख्त कहने से रोकने के लिए खामोश हो गए। मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दें प्लीज़, उसने धीमी आवाज़ में कहा। तुम्हारी इसी गलती की वजह से वापस इसी अंधेरे कुएं में जा गिरा है, जिसके दहाने तक वो बामुश्किल पिछले 3 सालों में आ पाया था। हूर की पलकें नम होने लगी। आपने मुझे इनके बारे में ठीक से कुछ बताया भी तो नहीं। हूर ने कुछ झिझकते हुए कहा। सैयद नूर आलम साहब ने कदरे नाराज़गी से इसकी जानिब देखा। पूरा सच जानना चाहती हो? बर्दाश्त कर पाओगी? अपने गुस्से को दबाते बड़ी संजीदगी से पूछ रहे थे। हूर ने झुकी नज़रें उठाकर उनकी जानिब देखा। तभी जावर वहाँ भागता हुआ आया था। इसके नूर आलम साहब को मुखातिब करने पर हूर ने पलट कर इसकी जानिब देखा। सर, वो छोटे सर होश में आ गए, मैडम को बुला रहे हैं। इसने फूली सांसों को संभालते हुए कहा था। अंदाज़ा हो रहा था कि वो ड्राइंग रूम तक भाग कर आया था। सैयद नूर आलम साहब ने कुछ कहने के लिए लब खोले थे, लेकिन वो इनके कुछ बोलने से पहले ही ड्राइंग रूम से बाहर निकल कर अपने और महदस के बेडरूम की तरफ भागी थी। जोहरा भी अपने साहब के लिए सूप ले आए। बेडरूम की तरफ बढ़ते हुए इसने डाइनिंग टेबल समेट दी। जोहरा बी को मुखातिब किया था। नूर आलम साहब सोफे पर बैठते अपनी पेशानी मसलने लगे। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आई तो महदस की आंखों में बेयकीनी से उतर आई। वो अपनी सुरमई आंखें फैलाई इसे देखने लगा। एक बार गर्दन मोड़कर गिलास विंडो से बाहर नज़र आते आसमान पर नज़र डाली। ढलती दोपहर का मंजर था। इसने दोबारा हूर की जानिब देखा। इसे याद आया कि वो रात का तीसरा पहर था जब वो इसका कुर्ब चाहता था। इसने कर्ब से अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींच लीं। हूर, तुम? वो बोल नहीं पाया था। हूर के पीछे जोहरा भी हाथ में ट्रे लिए अंदर आई थी। हूर ने इनसे सूप के बाउल वाली ट्रे ले ली थी। हाँ, मुझे ही पुकार रहे थे ना आप, कहते हुए वो हौले से मुस्कुराई। महदस ने एक थका हुआ सांस खारिज किया। तुम आ गई? अब तो नहीं जाओगी ना? इसे अपने करीब आता देखकर बड़ी संजीदगी से पूछ रहा था। लहजे में खौफ का अंसर शामिल था। हूर ने फ़ौरन नफ़ी में गर्दन हिलाई। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपकी बीवी हूँ, भला आपसे दूर क्यों जाऊँगी? दूसरी तरफ से बेड पर इसके करीबी बैठते हुए हूर ने नरमी से कहा। महदस ने उदास निगाहों से इसकी भीगी पलकों की जानिब देखा। घनेरी पलकों पर वाज़े उदासी थी। इसने सूप से भरा चम्मच महदस की जानिब बढ़ाया, जो मुतमईन सा होकर बेड क्राउन से टेक लगा चुका था। मुझे नहीं पीना, इसने मुंह फेरते हुए कहा। मेरे हाथों से भी नहीं? हूर ने बड़े प्यार से पूछा।
اس کے سوال پر مہدس نے سلگتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا، بنا کچھ کہے خاموشی سے سوپ پینے لگا۔ کچھ پل یوں ہی گزر گئے۔ آپ کو پتہ ہے آپ پورے 12 گھنٹے کے بعد ہوش میں آئے ہیں۔ نیپکن سے اس کا منہ صاف کرتی وہ نرمی سے بولی، اور تمہیں افسوس ہو رہا ہوگا کہ مجھے ہوش کیوں آ گیا۔ اس کے ہاتھ سے نیپکن لے کر اس نے بولتے ہوئے خود اپنے ہونٹ تھپ تھپائے تھے۔ وہ چپ چاپ بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا، پھر باؤل ٹرے میں واپس رکھ کر ٹرے سائڈ پر رکھ دی۔ مہدس نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ ہور کا دل بے ساختگی سے دھڑکا۔ تمہیں میں پاگل لگتا ہوں؟ ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ دھیمی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ اس کی سنجیدگی پر ہور کا حلق خشک ہونے لگا۔ تم خاموش پا کر اسے وہ بے دردی سے ہنسا۔ تم جانتی ہو میں کچھ کہنا چاہتا تھا، پھر میں کچھ سوچ کر رک گیا تھا، مگر نہیں، تم کیسے جان سکتی ہو؟ میں نے تو تمہیں بتایا ہی نہیں۔ ہنوز ہنس رہا تھا، ایک بے درد دل چھلنی کرتی ہنسی۔ ہور کو اندازہ ہوا اس کی ہنسی اس کی بھاری آواز سے بڑھ کر خوبصورت تھی۔ کیا؟ ہور بوکھلائی۔ وہ بے حد قریب تھا۔ یہی کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اس کے بالوں کی لٹوں کو چھیڑتے ہوئے مکمل سنجیدگی سے بولا تھا۔ ہور کا دل شدت سے دھڑکا۔ کب سے؟ اپنے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے ہور نے حیرت سے پوچھا۔ اس کی حیرت کی زیادتی سے کھلتی بادامی آنکھیں مہدس کو بےتاب کر گئی تھیں۔ اس نے اپنی انگلی کے پوروں سے اس کی سیاہ گھنیری پلکوں کو چھوا۔ وہ پزل ہونے لگی۔ پچھلے 4 سالوں سے اس کے گلابی پڑتے گالوں سے نظر ہٹا کر اس نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ اس کی بات پر ہول نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ شاید وہ واقعی پاگل ہو گیا تھا۔ اسے یوں حیرت سے اپنی طرف تکتا پا کر وہ ہولے سے مسکرایا۔ یقین نہیں آ رہا؟ اس کا لہجہ اس نے اپنا مذاق اڑاتا ہوا تھا۔ ہور نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچنے کی کوشش کی جس کی انگلیوں سے وہ کھیل رہا تھا، لیکن وائے افسوس، کوشش ناکام رہی۔ یقین آئے گا بھی کیسے؟ پاگلوں کی محبت قابل یقین تھوڑی ہوتی ہے۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بنا دل گرفتگی سے بولا تھا۔ اس کا پل پل بدلتا موڈ ہور کو پریشان کر رہا تھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو آرام کرنا چاہیے، نرمی سے کہتے ہوئے ہور نے پھر سے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ گرفت سخت تھی۔ مجھے آرام کی نہیں، تمہاری ضرورت ہے۔ اس کی کلائی کو جھٹکا دیتا وہ سرد لہجے میں بولا تھا، انداز وارن کرنے والا تھا کہ اب کوئی کوشش مت کرنا۔ برا لگتا ہوں نا میں تمہیں؟ وہ بے تاثر لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ہور نے بڑی مشکلوں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ خوبصورت ترین مرد، بھلا کب کسی کو برا لگ سکتا تھا؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ اچھا لگوں گا بھی کیسے؟ محبت جو نہیں ہے تمہیں؟ محبت تو مجھے ہے تم سے، صرف مجھے۔ اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی مضبوط انگلیاں پھنساتا وہ اس کے ہاتھ کے پوچھ دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، مجھے آپ کی محبت پر اعتبار نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ ہور نے بڑے ضبط سے کہا۔ بدلے میں مہدس استہزاء آمیز ہنسی ہنسا۔ اپنی محبت اور اعتبار تو مجھے خود بھی نہیں ہے، پھر تم کیسے کر سکتی ہو یہ اعتبار؟ کہا تو ہے کہ پاگل ہوں، اور پاگلوں کی نفرت کیا اور محبت کیا۔ بات ادھوری چھوڑتے ہوئے اس نے ایک نظر ہور کا ضبط سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھا۔ اسے پچھلی رات کا ایک سین یاد آ رہا تھا، کس قدر تڑپا تھا وہ اس لڑکی کے لیے، اور وہ کس قدر بے دردی سے اسے چھوڑ گئی تھی۔ رات تو مجھے مرتا ہوا چھوڑ گئی تھی، ہے نا؟ اپنی پرانی جون میں لوٹتا وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہور کا دل دھڑکا۔ تو اب یہاں کیا کر رہی ہو؟ لہجہ ہنوز سرد تھا۔ ہور کا دل اس کی سرمئی آنکھوں کی بدلتی رنگت کے باعث کانپنے لگا۔ مہدس؟ ہور کے لب پھڑپھڑائے۔ اگلے ہی پل ہور کا خدشہ سچ ثابت ہوا تھا۔ چلو اٹھو، دفع ہو جاؤ۔ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے وہ دہاڑا۔ وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے کھسکی۔ اس کا انداز بدل چکا تھا، لہجے کی نرمی مفقود تھی۔ مہدس پلیز، وہ منمنائی۔ اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کرتا وہ اداس ویران نگاہوں سے اسے گلابی پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تم نے میرے پلیز کی لاج رکھی تھی؟ غصے دکھ باوجود وہ تکلیف زدہ سا گویا ہوا۔ اس کے چپتے ہوئے لہجے پر ہور کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ ایک بے بس انسان کو کس قدر بے بس کر دیا تھا اس نے۔ پچھلی رات کی بابت سوچتے ہوئے اس کے نم آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر رخساروں پر لڑک گئے۔ مہدس کو تکلیف ہوئی تھی، یوں لگا جیسے اس کے سامنے ہور نہیں، وہ تھی جو آج پھر اس کی بے رخی پر رو رہی تھی۔ میں ڈر گئی تھی، آئی ایم سوری، ہور نے روتے ہوئے کہا۔ اس کے معافی مانگ لینے پر مہدس نے ہولے سے اپنا نچلا لب دانتوں میں دبا لیا۔ یہاں سے چلی جاؤ ہور، چلی جاؤ۔ اپنے چہرے کا رخ پھیرتے ہوئے مہدس نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ ہور نے التجائیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ باہر جا کر سید نور عالم صاحب کو مزید ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں جاؤ۔ سائڈ لیمپ فرش پر مارتے ہوئے وہ اس بار چیخا تھا۔
वो कांपते दिल पर हाथ रखती जल्दी से बेड से उतरी। हूर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मेहदस ने गहरे सांस लेते हुए इसकी पुश्त को देखा, फिर जल्दी से अपने गाल रगड़ लिए जो नम हो गए थे। अपना मोबाइल साइड टेबल से उठाकर इसने नज़रों के सामने किया, फिर सैयद नूर आलम साहब का नंबर डायल करने लगा। पहली बेल पर उन्होंने कॉल रिसीव कर ली। आप मेरे हमदर्द नहीं, दुश्मन दादू। गुजर रही थी मेरी ज़िंदगी, सकूत था, एक ठहराव था। मुझे बिना किसी खौफ के मौत का इंतज़ार था, लेकिन आपने इसे मेरी ज़िंदगी में शामिल करके मुझे मौत से ही खौफज़दा कर दिया। खुश हो जाएं अब आप। मेहदस इब्राहिम जीना चाहता है, जीने की उमंग तड़प पैदा करती है आपकी बहू ने मुझ में। वो रोते हुए अपनी शिकस्त कबूल कर रहा था, अंदाज हारा हुआ था। मैं ख़ुद को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ। सैयद नूर आलम साहब की मुस्कुराती आवाज़ मोबाइल के स्पीकर से उभर रही थी। वो अपने लब भींच गया। मेरी मौत यकीनी है, ये मैं जानता हूँ। बस फ़र्क इतना है कि पहले मेरी मौत का अफसोस सिर्फ़ आपको होता, अब तो मुझे ख़ुद को भी होगा, क्योंकि मैं हूर के साथ जीना चाहता हूँ। एक ही नहीं, अपनी बहुत सी ज़िंदगियाँ इसके साथ जीना चाहता हूँ। कुछ गुस्से, कुछ बेबसी से एहसास तले इतराफ़ कर रहा था। इसकी मौत वाली बात पर नूर आलम साहब के लबों की मुस्कुराहट सिमटी थी। बकवास बंद करो अपनी। वो इस पर दबा दबा सा चीखे। इन्हें तड़पते देखकर वो भीगी सी हंसी हंसा। फ़िल वक्त तो आप डॉक्टर इब्रार हैदर को कॉल कर लेना, मुझे अपने कदमों पर चलना है, जल्द अज जल्द। बेड क्राउन से टेक लगाता भरपूर संजीदगी से बोल रहा था। इसकी बात ने एक बार फिर सैयद नूर आलम साहब को तकलीफ़ के बावजूद सुकून बख्शा था। क्या वाकई? उनकी बूढ़ी आवाज़ जज्बात की शिद्दत से कांप उठी। हाँ जी, उसने हुंकारा भरा। मैंने इसे रूम से बाहर निकाल दिया दादू, इसे कुछ मत कहिएगा। रात भी जो कुछ हुआ वो मेरे पागलपन की वजह से हुआ, वरना वो मेरी बहुत केयर करती है। उनके सवाल का मुबहम जवाब देकर अब वो इन्हें हूर की तरफ से सफाई दे रहा था। दिल की हालत क्या बदली, उसकी ज़ुबान लहजा भी हूर के लिए बदल गया था। वो हौले से हंसे। पता है मुझे, उन्होंने धीरे से कहा। मुतमईन होकर कॉल काट दी। मेहदस ने कुछ हैरत से स्क्रीन को देखा, फिर मोबाइल बेड पर पटकते हुए अपने हाथों की मुट्ठियां भींच लीं। बंद मुट्ठियों में हूर के हाथों का नर्म लम्स दहकने लगा था। मेहदस ने परेशान होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उनाबी होंठ इसे सोचते हुए धीरे से मुस्कुराए थे। रूह की बेचैनियाँ घुलती जा रही थी, अंदर एक सुकून सा उतर रहा था। वो बेदिली से चावलों में चम्मच चला रही थी, खा कम और हिला ज़्यादा रही थी। वहीं दूसरी चेयर पर बैठी माहिरा बेगम ने तिरछी निगाहों से इसकी जानिब देखा, लेकिन उनकी नज़रों के इर्तका से बेबहरा वो गायब दिमागी से प्लेट में कुछ खोज रही थी। तुमने क्या सोचा है? उन्होंने नरमी से पूछा। उनकी धीमी आवाज़ पर आन ने चौंक कर सर उठाया। उसकी सियाह आँखों में वीरानियाँ थीं। किस बारे में? ये अक्सर भूल चुकी थी कि वो क्या पूछ रही हैं। याद था तो बस हादी सैयद मैसम के प्रपोज़ल के बारे में। और किस बारे में? उन्होंने कुछ संजीदगी से कहा। उनके वाज़े सवाल पर वो सीधी होकर बैठी। मैंने भी कुछ नहीं सोचा, मुझे थोड़ा वक्त दे दें प्लीज़। चम्मच प्लेट में रखते हुए इसने बड़े ज़ब्त से कहा। दिल तो चाह रहा था कि चीख चीख कर रोए। उन्होंने मज़ीद कुछ नहीं कहा। मम्मा एक सवाल पूछूं? आंखों में उमड़ते आंसू पीने की कोशिश करती ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर बोली। माहिरा बेगम ने संजीदगी से उसकी तरफ देखा, फिर इस बात में सर हिलाया। आपने कहा था अच्छी लड़कियां दिल को समझा लेती हैं, लेकिन मम्मा अगर लड़की दिल को ना समझा पाए तो क्या वो अच्छी नहीं होती? और अगर लड़की अच्छी ना हो तो क्या वो बेटी भी नहीं रहती? इसका सवाल बता रहा था कि वो कितनी अजियत में है। माहिरा बेगम का दिल दुखा था। उन्होंने बड़ी मुश्किलों से अपने कमज़ोर पड़ते दिल को समझाया था। लड़की अच्छी ना हो तो वो बेटी रहती है आना, यह रिश्ता नहीं बदलता। और अगर बेटी अच्छी ना हो तो बेहतर है कि वो हो ही ना। बड़े ज़ब्त से उन्होंने गहरे अल्फाज बोले थे। आन को अपना सांस सीने में रुकता हुआ महसूस हुआ। अपनी आंखों से निकलते आंसू छुपाने को इसने जल्दी से सर झुका लिया। ये क्या कह दिया था उन्होंने? दिल को किस तरह से तोड़ा था आज? वो इन्हें मज़ीद कोई जवाब नहीं दे सकी थी। अगर तुम, वो बोल रही थी कि जब वहाँ आते मैसम को देखकर इन्हें खामोश होना पड़ा। आंटी मैं अम्मी को लेकर लाहौर जा रहा हूँ, मामू की डेथ हो गई है। आप प्लीज़ अपना और आन का ख्याल रखिएगा। इसने बड़ी जल्दी में इन्हें इत्तला दी थी। आन इसे नज़रअंदाज किए टेबल पर हाथ रखे हुए अपनी प्लेट को घूर रही थी। अल्लाह खैर, बेटा खैरियत से जाओ और वहाँ पहुँचकर इत्तला कर देना मुझे। खड़ी होकर इसके सर पर हाथ फेरते हुए माहिरा बेगम ने कुछ परेशान ज़्यादा लहजे में कहा। बड़ी मुश्किलों से मुस्कुराया था। फिर एक नज़र आन को देखा, जाने क्यों, लेकिन इसके दिल ने दुहाई दी थी। यूँ महसूस हुआ था जैसे वो इससे मीलों के फासले पर जा खड़ी हुई हो। आन तुम यूनिवर्सिटी से छुट्टी मत करना, मैं हादी को कह दूंगा, वो तुम्हें पिक कर लेगा कल। फिर कल शाम तक तो मैं आ ही जाऊंगा।
क्लासेस मिस ना करना। बड़ी नरमी से इसे मुखातिब कर रहा था, लहजा शीरीं, अंदाज मोतबाना था। माहिरा बेगम इसे देख कर रह गई, फिर धीरे से बोल पड़ी, नहीं कोई बात नहीं, तुम हादी बेटे को तकलीफ़ मत देना, एक दिन की तो बात है, कल ये छुट्टी कर लेगी, शाम में तो तुम आ ही जाओगे, बस परसों ही चली जाएगी, क्यों आना? ठीक कह रही हूँ ना? संजीदगी से बोलती माहिरा बेगम ने मैसम को मुतमईन करने को आखिर में इससे भी तायद चाहिए। वो ना चाहते हुए भी हौले से इस बात में सर हिला गई। मेरा तो ख्याल था कि तुम्हें जाना चाहिए, अगर आंटी कह रही हैं तो रहने दो। माहिरा बेगम को सीढ़ियाँ उतरती अपनी अम्मी की तरफ बढ़ता देखकर इसने आन से कहा था। वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी। अम्मी ठीक कह रही हैं, एक छुट्टी कर लेती हूँ, बाद में कवर कर लूँगी। उसने हौले से कहा तो मैसम पुरसकून सा हो गया।